Hello students, take out your SST book and open chapter number 1 of geography, page number 94. We have to do exercises today. We have already completed chapter number 1, the earth in the solar system. So let's start exercises. The first exercise is MCQs. A. Tick and write the correct word. So number 1, read this statement. Options are given A, B, C, D. You have to tick on the correct option. So read the statement first. The blank has countless number of galaxies. Options are A. Word, B. Space, C. Universe, D. Country. A. Word, space, universe. So right answer is universe. You have to tick on option C, universe, and you have to write universe in the blank as well. Universe. Okay students. Next, number 2, the blank becomes a hot dense ball and the center heats up. Options are A. Nebula, B. Star, C. Sun, D. Milky Way. So right answer is B. Star. The star becomes hot dense ball and center heats up. So right here as well in the blank star. Now third, since ancient times hundreds of constellations have been identified in the sky, of which scientists accept blank names now. Options are A. 87, B. 88, C. 89, D. 90. Right answer is 88. Right here in the blanks 88. Next, the blank is always found directly over the northern horizon. Options are A. Polar star, B. Ursa Major, C. Orion, D. Ceres. So right answer is A. Polar star. Pole star. Pole star. P-O-L-E. Pole star. Okay. Next, the blank is at the center of solar system. The blank is at the center of solar system. Options are A. Moon, B. Sun, C. Jupiter, D. Earth. As you know, the Sun is the center of solar system. So right answer is Sun. Tick on the Sun and fill in the blank Sun. Blank. 6 is blank is the nearest planet to the Sun. Nearest. Which one is the nearest to the Sun? Options are Venus, Jupiter, Earth, Mercury. Mercury is the nearest. You can see here Mercury. Mercury which is nearest to Sun. So right answer is Mercury. Fill here in the blanks Mercury. Now next, 7. Blank are small bodies made of ice and rocky dust which orbit around the Sun. So options are meteors, meteorites, comets, asteroids. Right answer is comets. Comets are small bodies made of ice and rocky dust which orbit around the Sun. Right here comet as well. So first exercise we have completed. First exercise, tick and write the correct word. Now next exercise is B.
B. Fill in the blanks using the suitable words. Fill in the blanks using the suitable words. Okay. Our sun and all the stars that we see in the night sky belong to a galaxy. Fill in the blank, galaxy. Our sun and all the stars that we see in the sky belong to a galaxy. Proxima Centauri is the second nearest star from the Earth. As you know, after Sun, Proxima Centauri is the second nearest star from the Earth. Third is, gravity is a natural phenomenon in which the physical bodies exert force या pull to attract other bodies. Fill here exert. Now next, the blank reaches the earth in 8 minutes. The sunlight reaches the earth in about 8 minutes. Okay. Next, blank is considered as Earth's twin because of its same size and shape as that of Earth. So Venus, fill here Venus is considered as Earth's twin because of its same size and shape as that of the Earth. Next, the moon is a natural satellite of the Earth. Fill here satellite. Blank are a swarm of rock pieces that lie in the bed between the orbits of Mars and Jupiter. Asteroid. Fill here in the blanks. Asteroids are a swarm of rock pieces that lie in the bed between the orbit of Mars and Jupiter. Now we will do next exercise. Answer the following question in a few words. Okay. See, answer the following question in a few words. Which star is nearest? ये एक्सरसाइज आप यहीं पे करेंगे, इसको कॉपी भी नहीं करना, बट ये दोनों एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज D and E. You have to write answer of these exercises in your geography copy, but this exercise you have to do in the book. Okay. Answer the following question in a few words. Which star is nearest to the Earth? Which one? Sun. So write here sun. एक वर्ड का ये एक वर्ड के है, तो ये आपको इसके सामने ही आंसर आप लिख लेंगे और वहीं पे मेमोराइज आप कर लेंगे, इसको अलग से कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है. What heats up and begins to glow? Star. Answer is star. Star heats up and begins to glow. What is always found over the northern horizon? Pole star. Pole star. Right here, pole star. Okay. Pole star. Okay. Next, name two easily recognizable constellations. तो यहाँ पे उर्सा मेजर लिख दीजिए, उर्सा मेजर. Second is Orion. Fifth is which planet is the farthest one? तो सबसे दूर कौन सा planet है? Farthest, Neptune. Neptune. Okay.
which planet supports life? So very easy one. Earth support life. Which is the largest asteroid, nearly 700 किलोमीटर across in diameter? Ceres है, which is 700 kilometer across in diameter. Ceres, largest asteroid. Okay. Now exercise number D. Answer the following question in short. So this exercise you have to write in your geography copy, and this exercise as well, exercise E, you have to write in your copy. So let's start exercise number D. Answer the following question in short. First question is, what are celestial bodies? What are celestial bodies? So यहाँ पे हम आपको टिक लगवा देंगे, तो इसको आपको आंसर जो है इसमें टिक रहेगा, तो आपको इसको क्वेश्चन लिख लेंगे आप कॉपी में, और फिर उसके बाद से यहाँ से आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, तो यहाँ पे नंबर 1 जो एक्सरसाइज है डी का ये है, तो यहाँ पर डी लिख के 1 लिख लीजिए और ये टिक लगा दीजिए। द बॉडीज वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडीज। द हेवनली बॉडीज इंक्लूड द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स एंड मीटियर्स। तो यहाँ तक ये आंसर है, डी का पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस। व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस, तो यहाँ पे आ जाइए पेज नंबर 90 पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से टिक लगा दीजिए, ये जो है डी का क्वेश्चन नंबर 2 है, डी लिखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिए, आंसर नंबर 2 लिख के। व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ सम ऑफ द स्टार्स इन द स्काई अपीयर टू बी अरेंज्ड in recognizable pattern. Some look like animals, some look like people, while some look like objects. These bright stars which appear to make a pattern in the sky are called constellation. यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद कर दिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर हो गया। ये बी का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। नेक्स्ट है, इन एंशिएंट टाइम हाउ डिड सेलर फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। तो ये डी का तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम देखें कहाँ पे है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे डी लिख दीजिए और ये आंसर नंबर 3 लिख दीजिए, और यहाँ से ऐसे ब्रैकेट बना के निशान लगा लीजिए। यहाँ से आप जो है, ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम सेलर्स एंड अदर ट्रेवलर्स यूज द पोल स्टार टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। यहाँ पे एंड कर दीजिए, ऐसे एंड का ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का डी के एक्सरसाइज का। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द इनर एंड आउटर प्लैनेट। इनर एंड आउटर प्लैनेट, यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पर डी लिख के 4 लिख दीजिए, और ये इनर प्लैनेट को हेडलाइन बना दीजिएगा, और उसके बाद से मरकरी 1 एंड वीनस, अर्थ एंड 4, 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के इनर प्लैनेट्स के आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, इनर प्लैनेट ये हेडलाइन डाल के मरकरी फर्स्ट, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स आप लिख देंगे। फिर इसी आंसर में आउटर, नेक्स्ट लाइन से आउटर प्लैनेट की हेडलाइन डाल देंगे, और उसमें जुपिटर फर्स्ट, सेकंड सैटर्न, थर्ड यूरेनस, फोर्थ नेपच्यून। ये आपका आंसर है। तो यहाँ से निशान लगा लिए, लेकिन आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इनर प्लैनेट की हेडलाइन डाल के ये चारों उतार लेना 1 बाय 1। उसके बाद से आउटर प्लैनेट, नेक्स्ट लाइन से आउटर प्लैनेट का हेडलाइन डाल के ये 1 बाय 1, 1 2 3 4 ये आपको नंबर से लिख लेना है। ओके, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द मून। मून पर जीवन क्यों नहीं है। तो आ जाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डी लिख के 5 लिख लीजिए, डी लिखिए और देन 5 लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द मून ड्यू टू द
एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, और यहाँ पे ये बंद कर दीजिए। तो आंसर है यहाँ से लेके 9 से लेके और मॉइस्चर तक, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है व्हाट आर मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे आ जाइए मीटियोराइट्स, यहाँ पे डी लिख दीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 आंसर नंबर 6 लिख दीजिए। यहाँ ऐसे टिक लगा दीजिए वेन पे, वेन, और ये दीज ऑब्जेक्ट्स को काट दीजिए और मीटियर्स लिख दीजिए। यहाँ पे दीज एंड ऑब्जेक्ट्स को, इसको काट के हटा देना है। वेन मीटियर्स फॉल ऑन द अर्थ सरफेस दे आर कॉल्ड मीटियोराइट्स। ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेंजेस है, दीज ऑब्जेक्ट्स को हटा देंगे, वहाँ आपको मीटियर्स लिख देना है। तो आप जब आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा व्हेन मीटियर्स फॉल ऑन द अर्थ सरफेस दे आर कॉल्ड मीटियोराइट्स। ओके, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। इसको आपको कॉपी में करना है और साफ साफ आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में क्वेश्चन उतारने हैं, देन आंसर लिखना, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर लिखना है, ऐसे करते करते ये लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। यहाँ पे शॉर्ट में था, एक एक लाइन, दो लाइन का आंसर था, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल ई। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्टार्स, डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स। व्हाट आर स्टार्स, आइए यहाँ पे, तो व्हाट आर स्टार्स में ये देखिए ई यहाँ पे आप लगा लीजिए ई, और ये पहला आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है द से शुरू होकर द हेवनली बॉडी दैट शाइन बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड स्टार। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, फ्रॉम ईयर टू ईयर अर्थ, फ्रॉम द हेवनली बॉडी टू फ्रॉम द अर्थ, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो ऐसे आप निशान लगा लीजिए, ई लिख के 1 लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे व्हाई इज द सन कॉल्ड द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाइए, आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे ई लिख के 2 लिख दीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ई लिख के 2 लिख दीजिए। अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ निशान लगा लीजिए। द सन इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, से यहाँ से करते हुए आपको प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, यहाँ तक आपको करना है। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ई एक्सरसाइज का। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लैनेट्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड। प्लैनेट्स क्या हैं और कैसे वो क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ये है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई लिख दीजिए और नंबर 3 लिख दीजिए। ये आंसर नंबर यहाँ से आपको करना है, दे रहा है 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम से करते हुए आपको यहाँ तक आना है पूरा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये पूरा सेक्शन उठा लेना है और लिख डालना है। ठीक है, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। देयर आर 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम फ्रॉम हियर टू आर मेड अप ऑफ गैसेस, यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड एज यूनिक प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ क्यों यूनिक प्लैनेट है, अनोखा प्लैनेट है। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ई लिख के 4 लिख दें। तो ये आपका 4 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देयर आर नंबर ऑफ स्पेशल फीचर्स विच सेट अपार्ट अर्थ फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स। और उसके बाद पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके यहाँ तक आप पूरा इसको लिख देंगे। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द मून एंड फेजेस। मून और उसके फेजेस के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे ई लिख दीजिए और यहाँ पे 5 लिख दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, गौर से देखें, अच्छे से सुने। यहाँ पे क्या करना है आपको, मून इज़, यहाँ से पहली लाइन को आप ले लेंगे, पहला सेंटेंस यहाँ तक, मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक एक सेंटेंस लेना है। आप कॉपी में आंसर में पहला सेंटेंस लिख लेंगे, देन यहाँ से आपको ऐड करना है। फिर ये लाइन लेंगे, द मून
is about 3,84,400 kilometers away from us. No life can exist on the moon due to the absence of atmosphere and moisture. ओके, यहाँ तक लिखना है। एक लाइन यहाँ लिखने के बाद ये पूरा पैरा लिख लेना है। फिर उसके बाद से आपको हेडलाइन डालना है फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून हेडलाइन डालने के बाद आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा लिख डालना है। ये पूरा क्वेश्चन 5 का आंसर है। ठीक है, समझ गए? एक बार और सुन लीजिए। एक लाइन आपको यहाँ लिखना, फिर ये पैरा लिखना, फिर ये हेडलाइन डालना। हेडलाइन में एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इट अपीयर एज इफ इट इज चेंजिंग शेप इन द स्काई करते हुए और पूरा लिखते हुए यहाँ तक एंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो ये हमारा ई सेक्शन का क्वेश्चन आंसर भी हो गया जो डिटेल में है, और ये भी हमारा हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आंसर जो है आपको कॉपी में करना है, बाकी एक्सरसाइज आपके बुक में रहेगी। और यहाँ पे थिंक या आंसर विच प्लैनेट इज नाउ कंसिडर एज ए ड्वार्फ प्लैनेट, ये आप कर सकते हैं, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो है। और आप इसको खोज करके इसका आंसर अपने से खुद से करिएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेज पूरी हमारी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन आंसर और ये सारे जो है फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द राइट करेक्ट वर्ड। और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अब अगले चैप्टर को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।